السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR نے ریتو ویدیکا کا کیا افتتاح۔ کسانوں کو عصری ٹیکنالوجی سے متعارف کروانے کی غرض سے حکومت کی اہم پہل، وزیر اعلیٰ نے کیا دعویٰ۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بارش سے متاثرہ علاقوں میں طبی خدمات کا سلسلہ جاری۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے میگھا طبی ریلیف کیمپ کا کیا آغاز۔ جمعیت العلماء کی جانب سے بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی عوام میں ریلیف کٹس کی تقسیم، حافظ پیر شبیر احمد نے کی نگرانی۔ ریڈ زون ٹاسک فورس ٹیم نے وینکٹ گری میں گیمنگ ہاؤس پر کیا دھاوا، 11 افراد بشمول 4 خواتین زیر حراست، نقد رقم کی گئی برآمد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی گورنر ڈاکٹر ٹی سوندرا راجن نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش کے موقع پر ان کی خدمات کو خراج پیش کیا اور ریاست کے نوجوانوں سے کہا کہ وہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے بتائے ہوئے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے ملک اور ریاست کی ترقی میں اہم رول ادا کریں۔ انہوں نے بتایا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے ہندوستان کی ترقی اور اس کی سلامتی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ Good morning to everyone. Rashtriya Ekta Divas Pledge. I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security of the nation and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen, which was made possible by the vision and the actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. Thank you. وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے جنگاؤں کے کوڑنگل میں ریتو ویدیکا کا افتتاح انجام دیا۔ بعد ازاں انہوں نے خصوصی پوجا میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ریاستی وزراء نرنجن ریڈی، ای دیاکر راؤ، ستیہ راٹھور، صدر نشین ریتو رابطہ کمیٹی پی راجیشور ریڈی، چیف سیکرٹری سومیش کمار کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے ریتو ورنم کا تفصیلی طور پر جائزہ لیتے ہوئے عہدیداروں کو کئی ہدایتیں بھی دیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے ریتو ویدیکا کا افتتاح انجام دینے کے بعد خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ میڈچل میں دھرانی پورٹل کا افتتاح انجام دینے کے بعد ہفتے کے روز جنگاؤں میں ریتو ویدیکا کا قیام عمل میں لاتے ہوئے تلنگانہ کی TRS حکومت نے ایک اور تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں کسی بھی ریاست میں ریتو ویدیکا موجود نہیں ہے۔ تلنگانہ کی TRS حکومت نے 2601 ریتو ویدیکا تقریباً 600 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے ہیں۔
उन्होंने बताया कि मुफ्त बरखी पंजाब और तमिलनाडु में तो फराहम की जा रही है, लेकिन 24 घंटे मुफ्त बरखी सिर्फ तेलंगाना रियासत में फराहम की जा रही है। इस तरह किसानों की मौत पर रैतु बीमा के जरिए 5 लाख रुपये भी फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि घर घर पानी सरबराह करने का उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया गया है। ఉండద్దు, ఎవరికి వాళ్ళే ఉంటే ఆగమాగం అయిపోతాం, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకుంటాడు. అందరం ఒకటి ఉన్నామనుకో అంటే ఎట్లా ఇది యాడిపోతుంది? సపోజ్ రాష్ట్రంలో ఇన్ని రకాల పంటలున్నాయి, కూరగాయలు పండించినాం. నా దగ్గర నేను పండించిన ఏంటి పుచ్చకాయ, వాటర్ మిలాన్ అంటాం కదా ఇంగ్లీష్లో, కర్బూజకాయలు పండితే వాడు వచ్చింది బేరకాయ ఏం ధర అంటే 7 రూపాయలను. నేను మార్కెట్ తెచ్చుకున్నా, ఏం ధరకు కొంటుందా మీరు కర్బూజకాయలు అంటే 40 రూపాయలు, అమ్మేటానికి 7 కొనుక్కుంటాను 40. మరి నడమల వెటిపాయ 33 రూపాయలు, ఏ ధర 2 రూపాయలు. అటు వినియోగదానికి లాభం ఉందా? అది లేదు, వానికి మాత్రం 40కి దొరుకుతుంది. రైతు సంగతి ఏంది? 7 రూపాయలు దొరుకుతుంది. ఇట్లా కూరగాయల ధరలు కానీ ధాన్యం ధరలు కానీ అన్నీ కూడా ఈ విధంగా మధ్య దళారీలు దోచేస్తూ ఉన్నారు. ఈ నివారణ రావాలంటే, దీనికి బాధ పోవాలంటే మన రైతు వేదికలే ప్రధానమైనటువంటి భూమిక అవుతుంది. రేపు నేను చెప్తా ఉన్నా, ఇది మామూలు విషయం కాదు నేను చెప్పేది. ఎట్లా వస్తుంది ఇది? ప్రపంచమంతా ఆశ్చర్యపడే పరిస్థితి వస్తుంది నేను చెప్తా ఉన్నా. జరుగుతుంది. ఎట్లా జరుగుతుంది? నేను చెప్పేవాడు నమ్మిండా? తెలంగాణ వస్తుందిరా అంటే ఆడికి వస్తుందా? అయ్యేదా పోయేదా అని మాట్లాడి రాలే తెలంగాణ, నీళ్ళు రాలే, కరెంట్ రాలే, కాళేశ్వరం కథం కాలే, రైతు బంధు రాలే. ఎట్లా వచ్చినాయి ఇవన్నీ? సంకల్పం కావాలి, చిత్తశుద్ధి కావాలి, ధైర్యం కావాలి, అప్పుడు వస్తే అన్నీ వస్తాయి. అదేవిధంగా నేను చెప్తా ఉన్నా, నిండు మనసుతోని ఒక రైతుగా, ఒక కాపన్ లాగా నేను హృదయపూర్వకంగా దేవునికి దండం పెట్టి చెప్తా ఉన్నా, నేను కలగనేటువంటి ఈ రైతు వేదిక, ఈ రైతు రాజ్యం వచ్చి తీరుతుంది తెలంగాణలో. మీరు అందరూ ఐక్యమైతే చెప్పి మనవి చేస్తాను. జరగవలసింది ఏంటి? ఎట్లుంటుంది? సపోజ్ మనం గోబీ పూలు పండించినాం, గోబీ పువ్వు మార్కెట్ పోవాలి, వట్టిగా తీసుకొని పోము. రేపు ఇవాళ తీసుకొని పోతున్నాం పిచ్చోన్లాగా తట్టలు పెట్టుకొని ఇవన్నీ వాడిపోతున్నాం. రేపు అట్లా పోవద్దు. రాష్ట్ర రైతు బంధు కమిటీ ధర నిర్ణయించాక గోబీ పువ్వుగా 15 రూపాయలకైతేనే ఇస్తాం కొరక, అవసరమైతే పెంటల వాడేస్తాం కానీ మార్కెట్ సేమ్ అని చెప్పే శక్తి రైతాంగానికి రావాలి. ఆపుకుంటాం కానీ ఆగమాగం అమ్మం అనే శక్తి రైతాంగానికి రావాలి. ఆ శక్తి వస్తే ఆటోమేటిక్గా చాలా బ్రహ్మాండంగా, చాలా గొప్పగా రైతాంగానికి గిట్టుబాటు ధరలు వస్తాయి. నేను కోరేదల్లా ఏంది? పంట పెట్టిన కాడి నుంచి కూర్చొని చర్చించుకోవడానికి వేదిక, అనుభవాలు పంచుకోవడానికి వేదిక. ఏం పంట వేసినాం, ఎట్లా వేసినాం, పక్క రైతుకి ఎట్లా వచ్చింది, మనం ఎట్లా ఇంకా ఎక్కువ పండించచ్చు. मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने तेलंगाना की TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने आवाम से डबल बेडरूम मकाना देने, दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम करने के अलावा किसानों के खर्चात की माफ़ी और दीगर वादों को पूरा नहीं किया, और अब वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सुनहरे तेलंगाना बनाने के लिए पेशरफ्त की है, जबकि हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। उन्होंने दुबाक की आवाम से अपील की है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से दी जाने वाली सहूलतों के मद्देनज़र BJP उम्मीदवार को कामयाबी से हमकनार करें। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उमर कॉलोनी हाफिज़ बाबा नगर में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाक़ों की आवाम के लिए मुफ्त मेगा मेडिकल रिलीफ कैंप का एहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी क़ायद मजलिस और रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने की। इस कैंप में ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के अमले ने अपनी खिदमात फराहम की, जबकि 8 मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स ने रुजू होने वालों का मुआयना किया और मुफ्त दवाएँ भी तकसीम की। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मिर्ज़ा मुस्तफ़ा सलीम बेग, अब्दुल वहाब, अब्दुल रहमान शाह, फ़हद बिन अब्दाद के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हाफिज़ बाबा नगर की मुख्तलिफ कॉलोनियों और बस्तियों के अवाम ने मज़कूरा कैंप से इस्तेफ़ादा किया।
जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा की जानिब से भी हैदराबाद के बारिश से मुतासर अफराद के लिए रिलीफ का नज़म किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत शाहीन नगर, अहमद नगर, उस्मान नगर की आवाम में रिलीफ किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा हाफिज पीर शब्बीर अहमद की निगरानी में मुफ्ती अब्दुल मुगन्नी मुजाहिरी, मौलाना हाफिज खलीक अहमद साबिर व दीगर ने मुतासरीन के घर घर पहुँच कर तकरीबन 1500 रिलीफ किट्स की तकसीम अमल में लाई। वादजा हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने मीडिया को तफसीलात बताईं। के अंदर सिटी जमीयतुल उलमा जगह जगह कैंप लगा के काम कर रही है और जिसके सदर मोहतरम भी यहाँ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है। चाहे वो ये बल्लागुड़े में हो या टोली चौकी में हो या और जगह भी हो, जो ना हर जगह काम हो रहा है। तो ये रियासत की जानिब से, रियासत से तो चंद लोगों ने यहाँ ला के दिया डिस्ट्रिक्ट से, ये तमाम रियासती कर रही है। चाहे जैसा नलगुंडे में किया, तकरीबन जो है ना 60 मकानों को बना के दिया। नलगुंडे के अंदर सब बह गया था, उनमें मौलाना एहसानुद्दीन साहब ने 60 मकानों को बना के दिया, उसकी मदद हमने की है। और इसी तरह हर जगह जो है ना, जो हर जो मोहल्ले के अंदर, हर जो है ना हल्के के अंदर जमीयत काम कर रही है। अब रियासत जो है, रियासत के पास कुछ जमा हो गया था, तकरीबन ये 1500 थैले चावल के हैं, कुछ जो है ना दूसरे तेल वगैरह के भी है। ये तमाम चीज़ें हमारे पास जमा हो गई और ये आने वाले हैं और कंटिन्यू। तो जैसा जैसा ये आएगा इंशाअल्लाह हम जो है हम यहाँ जमीयतुल उलमा हिंद ने सदर फ्रांस की जानिब से शान अक़दस में की गई गुस्ताखी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सदर जमीयतुल उलमा हिंद शाख तेलंगाना व आंध्रा हाफिज पीर शब्बीर अहमद और मुफ्ती अब्दुल मुगन्नी मुजाहिरी ने कहा है कि वक्तन फ़ौक़तन फ़्रांस के अखबारात नबी आखिर-उज़्ज़मा की शान अक़दस में गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हैं और सदर फ्रांस मैक्रोन की जानिब से इस गुस्ताखी को इजहार ख्याल की आज़ादी से ताबीर करना शर्मनाक अमल है, जिसकी मजम्मत भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सख्त अल्फाज में गुस्ताखाना कार्टून्स और उनकी हिमायत में दिए जाने वाले बयानात की मजम्मत करते हैं। जो वक्फे वक्फे से इस्लाम दुश्मन अमल और इस्लाम दुश्मन पॉलिसी अंजाम देता है, वहाँ कभी कुरान की तौहीन की जाती है, कभी इस्लाम की तौहीन की जाती है, कभी नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है, कभी मुसलमानों की शबी को बिगाड़ कर पेश किया जाता है। वक्फे वक्फे से फ़्रांस में ऐसे वाक़यात और ऐसे गमज़दा अलमज़दा सानिहात पेश आते रहते हैं। अभी हालिया वाक़या जो पेश आया वो ये है कि वहाँ का एक कार्टूनिस्ट, माहिर कहिए या उस्ताद कहिए या टीचर कहिए, उसको उस्ताद और टीचर कहने में भी शर्म आती है, तो उसने मुख्तलिफ़ कार्टून्स के ज़रिए अपने शागिर्दों को और अपने मातहत लोगों को इस्लाम के ख़िलाफ़ वरगलाया और ख़ास तौर पर नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह को बिगाड़ कर पेश किया, तौहीन आमेज़ कार्टून बनाए। ज़ाहिर है कि इस ऐसे कार्टून बनाने से
मुसलमान इस्लाम पसंद और इस्लाम पर अमल करने वाले लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं, उनको इश्तिआल दिलाया जाता है, उसके नतीजे में अगर कोई इंतहाई इक़दाम रुनमा हो गया, अमल में आया, तो उसकी मजम्मत की जा रही है, हालांकि उन वाक़यात की मजम्मत करना चाहिए। आज हमारे मुल्क ने जो फ्रांस की तायीद की है और फ्रांस की हिमायत में बयानात दे रहे हैं, उन्हें इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए कि उनके यहाँ भी इस्लाम पसंद और इस्लाम वाले लोग, इस्लाम के मज़हब को मानने वाले लोग हैं, करोड़ों मुसलमान हैं और पूरी दुनिया में सैकड़ों करोड़ मुसलमान आबाद हैं। हमारे मुल्क ने उनकी हिमायत करके तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी की है और उनको मजरूह किया है। हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। होना तो ये था कि इजहार ख़याल की आज़ादी के उन्वान पर मजहबी पेशवाओं का वक़ार मजरूह करना, ये किसी मुल्क में, किसी क़ानून में जायज़ नहीं है। जलपली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने म्यूनसिपलिटी की आवाम को तयख़ुन दिया है कि वह हुकूमती इमदाद को मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने के लिए तमाम इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिरगाम कॉलोनी और अतराफ़ व अकनाफ की आवाम ने म्यूनसिपल दफ्तर पहुँच कर कमिश्नर और उनसे शिकायत की है कि मुतासरीन तक हुकूमती इमदादी रकम नहीं पहुँची है। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा रकम को म्यूनसिपल कमिश्नर की निगरानी में और तश्कील दी गई कमेटियों की रिपोर्ट के बाद ही तकसीम किया जा रहा है। ताहम वो कोशिश करेंगे कि तमाम मुतासरा आवाम तक मज़कूरा इमदाद की रिसाई हो। బంగ్లాల నుంచి తిప్పుతారు, బంగ్లాలో 10 గంటల నుంచి కూర్చున్నాం, డోర్లు పెట్టేసి 10 గంటల నుంచి అంటే సాయంత్రం దాకా డోర్లు తీయలేదు సార్. తీయాలి కదా మరి మాయసులకు ఎట్లా గరీబులకు ఓట్లు వచ్చినప్పుడు ఇంటిలోకి వచ్చి అడుగుతారు. మరి ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్పు, మాకు చిన్న చిన్న పిల్లలు, మాకు కూడా వెళ్ళాలి కదా సార్. కౌన్సిలర్ బుల్మల గిరి మరి ఆయన వచ్చి మన ఏం బుధవారం నాడు మళ్ళీ ఏం చేసి అన్ని ఆధార్ కార్డులు అన్నీ తీసుకుని నేను ఇంటింటికి వచ్చి రాసిపోతామ్మా, ఇంటింటికి ఇస్తాను. ఇంటింటికి లేదు 2 రోజుల నుంచి మళ్ళీ వస్తున్న రోజులేదు సార్. ఇక్కడక్కడ కూర్చుని దింపుతున్నాం, అందరం మేము పిచ్చోలా తిరుగుతున్నాం సార్. అన్నం లేక నీళ్ళు లేక తిరుగుతున్నాము. మరి ఇవ్వాలి కదా మాకు కూడా. మేము 18వ వార్డు లక్ష్మీనారాయణ వార్డు మాది. మా గల్లీకి ఏం రావట్లేదు. ఇప్పటి నుంచి ఓట్లు వేసినప్పుడు వచ్చిండు, ఆ దండాలు పెట్టిండు, ఓట్లు రాపించుకున్నాడు, ఓట్లు వేసి గెలిపించుకున్నాము. మాకు వర్షాలు వచ్చినాయి, ఇప్పటివరకు రాలే. కరోనా వస్తే కూడా ఒక రోజు వచ్చి మందు కొట్టలే, చేయలేదు. ఇప్పుడు లోపల మొన్న పోయి మేము ఎంక్వైరీ చేసి సార్లు వెంబడి పొద్దున్న నుంచి పిల్లలు వేసుకొని తిరిగితే కూడా వస్తున్నాం అన్నారు. వేరే సపరేట్ ఇంట్లో కూర్చొని బిర్యానీ తెప్పించుకొని సార్లను కూర్చోబెట్టి తినబెట్టి మేము ఇంటికి పోతే మమ్మీని కొట్టడానికి వచ్చారని సార్లు మాట్లాడారు. సార్ ఏమన్నాడు, డబ్బులు ఇచ్చి ఆయన నేనైతే రాయను, ఎవరు కంప్లైంట్ చేసుకుంటారో చేసుకోమని చెప్పింది సార్. మాకు ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి ఆయన ఇంటి అయినా మమ్మల్ని బయటకు గెంటేసేసాడు. శ్రీరామ్ కాలనీ लक्ष्मीनारायण सर 18 वार्ड। मेरा नाम सैयद खतीफ़ है भाई। हमारे को 16 नंबर वार्ड को पैसे नहीं मिले, जो बिल्डिंग आ रही है वालों को पैसे दे दिए, पीछे से भिजा दिए। और हम लोग आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड क्या कर रहे हैं, नीचे फेंक दे रहे। और हमारा बुलमलागिरी जो हमारे काउंसलर साहब है, उन्हें तो खाली सूरत देख रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। और उनको क्या कर रहे हैं, जो उनके खास आदमियाँ हैं उनको बुला रहे हैं, फ़ोन करके बुला के उनको पैसे दे रहे। हम लोगों को गरीबों को किसको भी नहीं मिल रहा। हमारे वार्ड को जब हम लोग इलेक्शनों में हम सपोर्ट करे सालों को किसको भी नहीं मिल रहा। हम लोग और क्या बोल रहे हैं, वोटा गिरे सालों को पैसे देते, वोटा नहीं गिरे सालों को पैसे नहीं देते, तुम बोल रहे। आज यहाँ जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में आवाम के मसाइल को आज आवाम यहाँ पर आकर कंप्लेंट, उनके मसाइल की कंप्लेंट किए कि जो सीएम जो फ्लोटिंग रिलीफ फंड उन तक सही नहीं पहुँचा, बल्कि वो लोग आके हमारे बल्दिया में आकर कंप्लेंट दिए कमिश्नर को और मेरे को। तो इसके ऊपर जो हमारे 16 और श्रीराम कॉलोनी, ये जलपल्ली या पहाड़ी शरीफ के जो भी अतनाफ़ के इलाके जो बिल्कुल स्लम एरिया है, वहाँ के पब्लिक के बहुत शिकायतें आ रही हैं कि हमें पैसे नहीं मिले। बल्कि हम जितना हो सके, जितना गवर्नमेंट से फंड आया है वो हिसाब से कर रहे हैं। हम हर किसी को तो नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हर घर तक पहुँचाए पैसे। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेंगी कि हर जो स्लम एरिया, हर बस्ती में हर किसी को मिले पैसे, बोलकर हम गवर्नमेंट से भी अपील करें कि वो फ़ंड रिलीज़ करें। ये जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में बिल्कुल ये एकदम पसमानदा इलाका और बिल्कुल स्लम एरिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इलिटरेसी रेट के नीचे 70-75 इलिटरेसी रेट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। तो मैं अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मैं KCR साहब से और ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम से अपील करता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सीएम फ्लोटिंग रिलीफ फंड रिलीज़ कर ग्रांट देकर यहाँ के स्लम बस्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने की कोशिश करें। क्योंकि हम ये पूरी पब्लिक हमारे पर आके हमसे पूछ रही है कि हम पैसे हमें नहीं मिले, दूसरों को मिल गए, उनको मिले, हमारे को नहीं मिले। अब हम उनको जवाब देने से खासिर रहे हैं।
तो मैं सीएम केसीआर साहब से और ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम से अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पैसे सेंक्शन करें, क्योंकि यहाँ के गरीब आवाम बहुत है, हम उनके मसाइल को हल कर सकते हैं ये फ़ंड के ज़रिए, क्योंकि 10,000 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी मायने की बात है। तो इंशाल्लाह मैं केसीआर साहब से और मिनिस्टर मैडम से अपील करता हूँ। अब तक जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में कितने फैमिलीज को दिए आपने टोटल? अब तक 6,200 फैमिलीज़ को दे दी ये जो सीएम रिलीफ फंड, जिसमें रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के केसेस में मामूली कमी देखी गई। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1,445 नए केसेस और 6 अमवात की तस्दीक की गई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1,336 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,38,632 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,18,887 बताई गई है। आज सुबह 1,486 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 18,409 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 286 नए केसेस सामने आए। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने वेंकटगिरी जुबली हिल्स में बावसूख इत्तला पर धावा करते हुए गेमिंग हाउस का इंकशाफ किया और 11 अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें 4 खवातीन भी शामिल हैं। मज़कूरा हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 3,45,600 रुपये नगद रकम जब्त की गई। इस गेमिंग हाउस की ऑर्गेनाइज़र 58 साला पद्मजा बताई गई है, जिसके मकान पर गैर कानूनी काम जारी था। मज़कूरा कार्रवाई के लिए हिरासत में लिए गए अफराद को जुबली हिल्स पुलिस के हवाले किया गया। मादनापेट से मेन हाईवे गुजरने वाली सड़क पर बीजेपी कारकुनों की जानिब से हुकूमती इमदाद 10,000 रुपये की अदायगी रोके जाने पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेशनल कौंसल कायद सैदलू यादव ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से चादर घाट तक सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गया और आवाम को जगह जगह तकलीफ का सामना रहा। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्तहिकीन तक हुकूमती इमदाद नहीं पहुंची है और हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी से काम करना चाहिए। इस मौके पर केसीआर और केटीआर डाउन डाउन के नारे भी लगाए गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मोगलपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता राउडी शीटर मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ रियाज साकिन बड़ा बाजार शौकत यार जंग देवड़ी के खिलाफ स्पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उसे जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद और सैबराबाद कमिश्नरेट हदूद में हुई तकरीबन मुख्तलिफ 16 वारदातों में ये मुलविस पाया गया है। सैबराबाद पुलिस की जानिब से खून की अतिया कैंप का अहतमाम किया गया, जिसमें तकरीबन 80 पुलिस अहलकारों ने अपने खून का अतिया दिया। सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर ने पुलिस अहलकारों से अपील की थी कि वो अपने खून का अतिया दें। अलावाजी सुलेमान नगर ऊपरपल्ली की मुकामी आवाम ने भी अपने खून का अतिया दिया। इस सिलसिले में राजेंद्र नगर सर्कल इंस्पेक्टर G सुरेश ने मीडिया को तफसीलात बताईं।
कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने तरबियत याफ्ता 98 सब इंस्पेक्टर से तबादले ख्याल किया, जिनकी पोस्टिंग ग्रे हाउंड्स के अलावा सिविल और रिजर्व फोर्स में की गई है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत के हमरा एडिशनल कमिश्नर सुधीर बाबू IPS व दीगर भी मौजूद थे। मस्कुरा पुलिस के आला ओहदेदारों ने सब इंस्पेक्टर्स को रच्चाकुंडा पुलिस के काम का तरीक़ेकार व दीगर अहम उमूर के बारे में वाकिफ करवाया। ఈరోజు మన రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో 73 సివిల్ తర్వాత 25 AR RSI మొత్తం 98 RSI అండ్ సివిల్ SI ఇక్కడ రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఫస్ట్ టైం అంత దాదాపు 100 మంది ఈ సివిల్ అండ్ ARSI మా యూనిట్కి రిపోర్ట్ చేయడం. రాచకొండ 1 జూలై 2016లో ఫామ్ అయిన అప్పటి నుంచి ఇక్కడ చాలా వ్యాకెన్సీ ఉన్నాయి. కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్లో నాన్ ఆర్డర్ డ్యూటీ కావచ్చు, క్రైమ్ DSI కావచ్చు, అలాంటి పోస్ట్లో ఈ డైరెక్ట్ SI లేనా కాబట్టి అక్కడ ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి. కొత్త వచ్చిన SI వాళ్ళు ఆల్రెడీ అకాడమీలో ట్రైన్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇక్కడ మన డిస్ట్రిక్ట్ ట్రైనింగ్ కోసం ఇప్పుడు జాయిన్ చేస్తున్నారు. Definitely they will deliver good services for the citizens and will bring good name to our commissionerate. That is the expectation from them. Thank you. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अलमुनाई एसोसिएशन का चौथा सालाना जलसा उर्दू घर मोगलपुरे में मुनक़िद किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस, एसोसिएट प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवर के अलावा दीगर ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और अलमुनाई एसोसिएशन के अरकान को उनके कारनामों पर मुबारकबाद दी। सदर अलमुनाई एसोसिएशन एडवोकेट एजाज अली कुरैशी ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया और एसोसिएशन की रिपोर्ट भी पेश की। एसोसिएशन के दीगर अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। आज एक ऐसी तहरीर की तकरीब में शिरकत का मौका मिला जिसमें तलबा तालिबात की हौसला अफजाई के लिए मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब प्रोफेसर जो एक इल्मी सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव और दीगर कांग्रेस कायदीन ने साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर दोनों कायदीन की तस्वीर पर फूल मालाएँ पेश की। बाद अज़ान निकलिस रोड पर इंदिरा गांधी के मुजस्सिमे पर और असम्बली के अहाते में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्सिमे पर फूल मालाएँ पेश की गईं, जबकि इस मौके पर उनकी खिदमात को खिराज भी पेश किया गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। साबिक़ डिप्टी मेयर सुभाष चंद्र की क़यादत में सईदाबाद धोबी घाट की शाहराह पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक़ अफराद में रकम तकसीम न करने के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, जबकि इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का अलामती पुतला भी नज़र आतिश किया गया।
साबिक रुकन पार्लिमान मधु गौड़ याशकी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि TRS GHMC इंतखाबात के मद्देनज़र हैदराबाद के सैलाब से मुतासर अफराद को 10,000 की इमदाद करने की बजाय वो अपनी पार्टी के कारकुनों में तकसीम कर रही है, जबकि हुकूमत को चाहिए कि वो हर मुस्तहिक को उनके मुकम्मल नुकसान की अदायगी करने के इक़दाम करे। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की ज़रई पॉलिसी के ख़िलाफ़ कांग्रेस ने मुल्क भर में एहतजाज दर्ज करवाया है। उन्होंने किसानों को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज करने की भी सख्त मज़म्मत की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने रैतु वेदिका का किया इफ्तिताह। किसानों को असली टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाने की गर्ज से हुकूमत की अहम पहल, वज़ीर आला ने किया दावा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बारिश से मुतासरा इलाकों में तिबी खिदमात का सिलसिला जारी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेघा तिबी रिलीफ कैंप का किया आगाज। जमीयतुल उलमा की जानिब से बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों की आवाम में रिलीफ किट्स की तकसीम। हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने की निगरानी। रेड जोन टास्क फोर्स टीम ने वेंकटगिरी में गेमिंग हाउस पर किया धावा। 11 अफराद बशमुल 4 खवातीन ज़ेर हिरासत, नकद रकम की गई बरामद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।